हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा एप्स एंड वेब पोर्टल ऑफ नवंबर मंथ। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। So students, we have an app by the name Careers Cloud which you can go and download using the Play Store, and it is available only for the Android users as of now. Once you have downloaded and opened the app, you will see a page such as the second screen here. Then you just need to log in with your Google ID, or you can say with your Gmail ID on this application, and once you have logged in, you are ready to use the particular application. As you can see, you will be seeing here my course, all courses, crack current affairs. Just click on any of those and you will be directed to a second page. Here now, what are the features or why we recommend you to use the app? Because on the app we provide you daily current affairs both in English as well as in Hindi. Both Hindi and English current affairs are provided you daily along with the quiz sessions. This is important. We provide you daily with the quiz sessions that will help you to brush up your current affairs that you gained today through our video or any other notes provided. These English and Hindi PDFs are also provided to you daily. This is provided on our app course that you can go and purchase. Two types of courses are there, 1 year plan and a second year plan, which you can opt as per your need. Then we provide you with weekly videos. Not just weekly videos on YouTube and monthly videos, daily videos are also given. Apart from that, weekly PDFs of current affairs are provided to you. Compiled PDF of current affairs of the whole week will be provided to you both in English as well as in Hindi. Then similarly for the month also, you will be provided a compiled video of the whole month both in English as well as in Hindi PDF for the current affairs that will brush up your current affairs very much. Apart from this, we provide you with the topic wise current affairs, topics such as apps and web portals, important days, books and authors, then comes your sports, then comes your obituary, national affairs, international affairs, sports. These all topics are covered by us on our YouTube channel, which you can go and check it out also. Very important this section, because we provide you with the PDFs also with them that helps you to revise through a particular order, and it is very helpful to you, so you should definitely check it out. Then apart from it, we provide you questions regarding your particular exams also, such as bank, related to your banking. We provide you questions, we provide you PDF, we provide you material that will help you to revise those topics, those important topics. So very important. All right, so I definitely recommend you to check our app and do revise and to purchase the courses, because they will be very helpful to you. These, I strongly recommend you to use our app as well as website, and the quiz provided on the app is very helpful to you on the daily basis, and our monthly study material for your exams will do wonders. So do watch the video for the revision purposes, they are very helpful. And if you use my code Vikas10, straight away you will be getting an additional 10% discount on the purchase you made using the application. So additional discount for you students just from my side. It is a happy hour sale, you can say, 10% discount using Vikas10. So friends, let's start with the session now. तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे शादी हो रही है तो प्लीज़ बैंड बाजे को अवॉइड करना थोड़ा। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा संघ इनिशिएटिव। 3 चीज़ याद रखनी है आपको। अभी रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा, और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, इनके द्वारा भाषा संघ इनिशिएटिव, भाषा संघ मोबाइल ऐप और एक भारत श्रेष्ठ भारत मोबाइल क्विज गेम को लॉन्च किया गया। 3 चीज़ याद रखनी है, ठीक है। किसको सेलिब्रेट करने के लिए? राष्ट्रीय एकता दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए ये लॉन्च किया गया। अब राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो कि हमारे पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन मनाया जाता है, जो कि 31 अक्टूबर को आती है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस इसलिए फेमस हो गया। इसी दिन भारत संघ इनिशिएटिव, भाषा संघ इनिशिएटिव, भाषा संघ मोबाइल ऐप और एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये क्विज ऐप को लॉन्च किया गया। इन तीनों चीज़ों को याद रखना।
ठीक है, ये किस लिए बेसिकली, ताकि लोगों को, बच्चों को जो स्कूल में है उनको लैंग्वेज में बेटर बनाया जा सके अपनी मदर टंग के अलावा। ये आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मोटो रहेगा, इनका एजेंडा था कि बच्चे को अपनी मदर टंग के अलावा भी लैंग्वेज कोई ना कोई आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट रहती है। फिर अगर भाषा संघ की बात करें, ये इनिशिएटिव किसका रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंडर लॉन्च किया गया। ये क्या फोकस रहता है कि हमें बेसिक लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है, जो कम्युनिकेशनल स्किल्स होती हैं, आप एक दूसरे बच्चे से बात करते हैं, उसको बढ़ावा मिले। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये किस शेड्यूल में आता है, लैंग्वेज की बात किस शेड्यूल में की गई है, 8 शेड्यूल में की गई है, जिसमें 22 लैंग्वेजेस का जिक्र करा है आपसे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉप 26 की। सबसे पहले याद रखना, इससे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर कब लॉन्च किया गया, कॉप 26 के दौरान। किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, तो इंडिया के दौरान आपका क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर लॉन्च किया गया। ये एक डैशबोर्ड रहेगा फॉर असेसिंग द एमिशंस, एनर्जी एंड रिसोर्स कंजप्शन। मतलब कि जो आपकी एनर्जी कितनी प्रोड्यूस की जा रही है, आप कैसे कैसे रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हो, कितना रिसोर्स आपका बचा हुआ है, कितनी आप एनर्जी को जनरेट कर रहे हो, कितना एमिशंस क्रिएट कर रहे हो, कितना पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हो। इस सब का एक डाटा मेंटेन किया जाएगा क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर के दौरान के साथ। ये क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर इसको मैनेज करेगा, मॉनिटर को, डाटा को सारा सब कुछ एक मतलब तरीके से रखेगा, एक सब वो दिखाता रहेगा, बताता रहेगा आपको, एक पूरा डाटा मेंटेन रहेगा, डाटा बेस सा। तो ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, ये आर यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो ये क्या चीज़ को मॉनिटर करेगा, आपके क्लाइमेट एक्शन को, इनइक्वालिटीज़ इन एमिशन, मतलब जो इनइक्वालिटी फैल रही है एमिशंस में, कहीं ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, कभी कम हो रहा है, तो उसको मॉनिटर करेगा। एनर्जी आप कितनी जनरेट कर रहे हो, आप जो रिसोर्सेज का कंजप्शन कर रहे हो अक्रॉस द वर्ल्ड, उसको मॉनिटर करेगा। ये लॉन्च किया गया, इट वाज लॉन्च्ड इन द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कॉप 26 के दौरान, जो कि ग्लासगो में थी, यूनाइटेड किंगडम में। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट 2022 में जो कॉप 27 होगी, कॉप 27 को कौन होस्ट कर रहा है, ये बताओ। कॉप 27 भी बता दो, कॉप 28 भी बता दो, मैं दोनों बचा चुका हूं आपको। विकास सर दोनों बता चुके हैं आपको, जल्दी बता दो कॉप 27 और कॉप 28 कौन होस्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए फिर नीचे देखते हैं हम, क्लाइमेट मॉनिटर इक्विटी क्या होती है। क्लाइमेट मॉनिटर डैशबोर्ड इज डेवलप्ड बाय क्लाइमेट चेंज ग्रुप एट MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा, जो कि चेन्नई में है। नेचुरल साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज का बेंगलोर में है, इनके द्वारा ये आपका क्लाइमेट मॉनिटर इक्विटी बनाया गया है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट। इट फोकसेस ऑन असेसिंग एट इंटरनेशनल लेवल इक्विटी इन क्लाइमेट चेंज, इनइक्वालिटीज एंड एमिशंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे, IRDA ने लॉन्च किया है विसल ब्लोअर पोर्टल। ये विसल ब्लोअर पोर्टल क्या है, इसको ऐसे समझिए, जो लोग ढंग से काम नहीं करते हैं, जो आपका करप्शन करते हैं, जो फ्रॉड्स क्रिएट करते हैं, जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, उन पे नज़र रखने के लिए, उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करने के लिए IRDA ने ये लॉन्च करा है विसल ब्लोअर पोर्टल। ये किसका पार्ट रहेगा, विजिलेंस अवेयरनेस वीक का पार्ट रहेगा, जो कि 26 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में ऑब्जर्व करा जाता है हर साल। काफ़ी इंपॉर्टेंट, फिर से देखिए, IRDA क्या होता है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इनके द्वारा ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आता है। इनके द्वारा विशल पोर्टल को लॉन्च किया गया विजिलेंस अवेयरनेस वीक के दौरान, जो कि 26 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में ऑब्जर्व किया जाता है। रीज़न क्या रहा इसका, कि जो फ्रॉड, करप्शन और अब्यूज़ करते हैं अपनी पावर का, उनके खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल की जा सके, इसलिए इसको लॉन्च करा गया। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें फिर सेंट्रल विजिलेंस कमेटी की, इनके चेयरमैन कौन रहेंगे, कमिश्नर कौन रहेंगे, सुरेश एन पटेल इनके चेयरमैन कमिश्नर रहेंगे। और इसकी जो कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन है, इसको हेड किसके द्वारा किया जाता है, श्री के सनातनम जी के द्वारा इसको हेड करा जाता है। ये दोनों चीज़ याद रखना, कमिश्नर सुरेश एन पटेल। नेक्स्ट हम बात करेंगे, गुजरात गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया ई सरकार एप्लीकेशन।
एप्लीकेशन है, पोर्टल नहीं है, वेबसाइट नहीं है, क्या है? एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन। क्या है? ई सरकार। किन के द्वारा लॉन्च की गई? गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई। रीजन क्या रहा कि पेपरलेस बनाना है हमें एडमिनिस्ट्रेशन को, मतलब कि जो भी काम का पेपर पे होता था ना, अब उसको शिफ्ट कर देंगे डिजिटल उस पे। डिजिटल उस पे मतलब मोबाइल एप्लीकेशन हो गई। मोबाइल एप्लीकेशन पे जो पेपर का काम होता था अब मोबाइल एप्लीकेशन पे हो जाएगा आपका, सब कुछ डिजिटाइज करने की बात की गई। तो ई सरकार किसकी एप्लीकेशन है? गुजरात गवर्नमेंट की। किस लिए? पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन बनाने के लिए। सेम चीज यहां पे लिखी गई है। एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट आ जाती है कि गुड गवर्नेंस डे के दौरान इसको लॉन्च किया गया, जो कि 25 फिर से बताता हूं, 25 दिसंबर को आपका गुड गवर्नेंस डे ऑब्जर्व किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखना। और ये किस लिए ऑब्जर्व किया जाता है 25 दिसंबर को? क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की। काफी इंपॉर्टेंट, गुड गवर्नेंस डे। ठीक है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे उत्तम बीज पोर्टल की। उत्तम बीज पोर्टल अभी लॉन्च किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के दौरान। ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट ने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया। किस लिए? कि प्रोवाइड करेंगे हाई क्वालिटी सीड्स विद ट्रांसपेरेंसी। मतलब हरियाणा के जो फार्मर्स हैं उनको हाई क्वालिटी ऑफ सीड्स प्रोवाइड किया जाएगा विद ट्रांसपेरेंसी अंडर उत्तम बीज पोर्टल। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब हम देख रहे हैं हरियाणा में बहुत ज्यादा बीज बनाए जा रहे हैं। मतलब जैसे आपकी फसल लगती है, फसल जब पक जाती है अच्छे से तो वो आखिर में बीज देती है, तो उस बीज से आप नए पोर्टल, वो अपने नए बीज भी प्लांट बना सकते हो। ठीक, तो आपने कभी देखा होगा तुलसी का पौधा होता है, तुलसी का पौधा जब बड़ा होने लग जाता है ऊपर उसका फ्लावर सा आ जाता है, वो एक्चुअली बीज होते हैं। आप उसको सुखा के फिर से जमीन में गाड़ देंगे तो वो फिर से एक तुलसी का पौधा निकलाएगा। तो ऐसे बीज बनते रहते हैं। अभी क्या है, दिस पोर्टल विद प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी इन द सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम अरेंज बाय बोथ द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सीड प्रोड्यूसिंग एजेंसी टू एंश्योर द क्वालिटी ऑफ सर्टिफाइड सीड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे ई गवर्नेंस पोर्टल की। EGCA बोला जाता है। ये ई गवर्नेंस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा। EGCA। ठीक है, ये क्या है? ई गवर्नेंस पोर्टल सिविल मिनिस्ट्री के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, याद रखिए। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया इनने इनॉग्रेट किया न्यू डिजिटल फंक्शन ऑफ द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जिसको EGCA बोला गया या फिर ई गवर्नेंस इन द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये क्या है EGCA? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जो कि आपकी 99 सर्विस कवर करता है इन द इनिशियल फेज और 198 सर्विसेज कवर करेगा इन द अदर फेज। ऑब्जेक्टिव रहेगा कि एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म दिया जाए इंडियन सिविल एविएशन इंडस्ट्री को। मतलब आपका कुछ भी आपको काम करना है रिलेटेड टू योर सिविल एविएशन, मतलब आपकी सिविल मिनिस्ट्री से रिलेटेड, आपके एयरप्लेन के पार्ट, फ्यूल, जॉब, कुछ भी रिलेटेड होगा, एक पोर्टल के अंडर आ जाएगा। आपको उसके बिजनेस करना है उससे रिलेटेड, सब कुछ एक पोर्टल के अंडर आ जाएगा। उससे क्या होगा कि आपको कोई परमिशन लेनी है तो आप उसी मिनिस्टर उस पोर्टल पे जाके डायरेक्टली वहीं के वहीं जिस रिलेटेड फील्ड में आपको सर्विस चाहिए, जिस रिलेटेड फील्ड में आपको परमिशन चाहिए, वो वहीं के वहीं मिल जाएगी। आपको इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा। वो क्या कर रहा है, एक सिंगल प्लेटफॉर्म से क्या होता है, आपका वर्क ईजी हो जाता है। आपके जो इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा, आपको एक ही जगह उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड सब कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑलराइट, की पॉइंट्स क्या है? सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी जैसे पायलट्स, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, एयर ऑपरेटर्स, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, मेंटेनेंस, डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे बहतेरी चीज़ इनको प्रोवाइड करी जाएगी। फिर इसको याद रखना, TCS और प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, ये दोनों मिलकर ऑपरेट कर रहे हैं और मेंटेन करेंगे EGCA को फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। अगर DGCA की बात करें तो डायरेक्टर जनरल है अरुण कुमार जी और इसका हेडक्वार्टर रहेगा न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट हम बात करेंगे किरण रिजिजू जी, जो कि हमारे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं। इन्होंने लॉन्च किया है सिटीजन्स टेलीलॉ मोबाइल एप्लीकेशन को। तो सिटीजन्स टेलीलॉ क्या है? ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है। किसने लॉन्च किया? हमारे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने। मिनिस्ट्री का पूछा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा सिटीजन्स टेलीलॉ, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। अब रीजन क्या रहा इसको लॉन्च करने का? ये इसलिए लॉन्च किया गया कि लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए लॉ के बारे में, उनको किसी से इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई लीगल एडवाइस चाहिए, अपना किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, कोई एंटरप्रेन्योर है, उनको लीगल एडवाइस चाहिए कि हम आगे अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं। कोई किसी
रिलेटेड किसी पंगे में फंसा हुआ है, किसी ने किसी को पैसे दिए थे, मतलब छोटी छोटी चीज़ें भी, आपको लॉ से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके, इसीलिए ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, सिटीजन्स टेली लॉ मोबाइल ऐप। इससे रिलेटेड याद रखना, टेली लॉ ऑन व्हील्स ये एक स्पेशल मोबाइल वैन रहेगी विद अ मैसेज टेली लॉ ऑन व्हील्स। ये क्या करेगी, अवेयरनेस फैलाएगी, ठीक है। इसके बारे में देखें तो ये क्या है, वैन जो कि ट्रैवल करेगी 30 से 40 किलोमीटर डेली, डिस्ट्रीब्यूट करेगी इंफॉर्मेशन लीफलेट्स ऑन टेलीलॉ एंड ब्रॉडकास्ट फिल्म्स ऑन रेडियो जिंगल अबाउट द टेलीलॉ सर्विसेज। अगर टेलीलॉ मोबाइल ऐप की बात करें, ये प्रोवाइड करेगा लीगल एडवाइस एंड कंसल्टेशन फ्रॉम द पैनल ऑफ लॉयर्स। नेक्स्ट आ जाता है आपका मोबाइल एप्लीकेशन जो कि है इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन, काफी इंपॉर्टेंट। इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इंडसइंड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, पोर्टल नहीं है, ये याद रखना, पूछा जाता है। फिर इंडसइंड बैंक ने इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया। जो अभी परचेंट हैं उनके मर्चेंट्स वो तो यूज कर सकते हैं, बल्कि जो नए नॉन कस्टमर्स हैं वो भी अपना एक करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, यानी इस बैंक के मर्चेंट बन सकते हैं ऑटोमेटिकली। जो बीच का काम होता है पेपर वर्क, आप सारा अब ऑनलाइन अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पे कर पाएंगे, आपको कहीं बैंक जाने की जरूरत नहीं है। फीचर्स जैसे ट्रैकिंग पेमेंट्स एट ईज, एक्सक्लूसिव पॉइंट ऑफ सेल, ये सारे फीचर रहेंगे आपके इस मोबाइल एप्लीकेशन के। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंजाब गवर्नमेंट की। इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया, कैरियर पोर्टल स्टूडेंट्स के लिए। ये कैरियर पोर्टल है क्या, ये आपकी जॉब एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, जो पंजाब गवर्नमेंट है, पंजाब का एरिया है, वहां पे जो जो सरकार एम्प्लॉयमेंट दे सकती है बच्चों को, वो इस पोर्टल के अंडर वो लाएंगे एंड एक अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि सो एंड सो टाइप की आप खुद से, जो कहते हैं ना, आत्मनिर्भर बनो, खुद अपनी जॉब क्रिएट करो, वो भी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, एज वेल एज जो एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी बच्चों को प्रोवाइड की जाएंगी ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। प्रगत सिंह जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है पंजाब के, इन्होंने लॉन्च किया पंजाब कैरियर पोर्टल। एम क्या रहेगा, कैरियर गाइडेंस टू स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स ऑफ पंजाब। इनको गाइडेंस की जाएंगे, वही ना कैरियर काउंसलिंग करेंगे, आपको बताएंगे कि आप क्या क्या कर सकते हैं, आपका फ्यूचर में आप जैसी आप लाइफ चाहते हैं, आपके जो गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको लाइफ में ऐसे बढ़ना चाहिए, आपको ऐसी एजुकेशन लेनी चाहिए, आपको ये कोर्स करना चाहिए या आपको ये डिग्री करनी चाहिए, ठीक है। इन्होंने किसके साथ मिलकर ये इनिशिएटिव लॉन्च किया, गवर्नमेंट स्टेट ने, पंजाब स्टेट ने यूनिसेफ के साथ मिलकर, यूनिसेफ इंडिया के साथ मिलकर इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ऑब्जेक्टिव रहेगा टू ऑफर प्रोफेशनल गाइडेंस टू द स्टूडेंट्स एंड एनेबल देम टू गेट अपॉर्चुनिटीज विद देयर कैपेबिलिटीज। अगर पंजाब की बात करें तो चीफ मिनिस्टर हैं चरणजीत सिंह चन्नी जी। 3 डांस याद रखने हैं, गिद्दा, भांगड़ा, झूमर, और रामसर साइट्स रहेगी ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, क्योशपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व। एक बार जल्दी से सारा रिवाइज कर देते हैं। कैरियर पोर्टल है पंजाब गवर्नमेंट का। इंडस मर्चेंट सॉल्यूशंस, ये मोबाइल एप्लीकेशन रहेगी इंडसइंड बैंक की। नेक्स्ट आ जाता है सिटीजन टेली लॉ, ये आपकी एक मोबाइल ऐप है। किस ऑर्गेनाइजेशन ने, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने लॉन्च की गई है सिटीजन टेली लॉ मोबाइल ऐप, जागरूक करने के लिए, लीगल एडवाइस देने के लिए बेसिक एंटरप्रेन्योर्स एज वेल एज पीपल को ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया। नेक्स्ट आ जाता है आपका हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के द्वारा उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया गया था ताकि गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स प्रोवाइड किया जा सके फार्मर्स को हरियाणा के। नेक्स्ट आ जाता है ई गवर्नेंस पोर्टल, ये लॉन्च किया गया था सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा। ई सरकार ऐप, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी। अपने एडमिनिस्ट्रेशन को पेपरलेस बनाने के लिए, डिजिटल बनाने के लिए ई सरकार ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है विसल ब्लोअर, जो भी आपके फ्रॉड करते हैं, करप्शन करते हैं, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल करते हैं, उनके खिलाफ एक कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए IRDA द्वारा ये विसल ब्लोअर पोर्टल लॉन्च करा गया। ये विजिलेंस अवेयरनेस वीक के दौरान लॉन्च किया गया था। 26 अक्टूबर से 1 अक्टूबर के बीच में ये विजिलेंस अवेयरनेस वीक ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिएगा। फिर आ जाता है आपका क्लाइमेट मॉनिटर इक्विटी, COP 26 के दौरान जो कि ग्लासगो में हुई थी, इंडिया ने लॉन्च किया क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आपका कितना रिसोर्स यूज हो चुका है, कितना बचा हुआ है, कितनी एनर्जी क्रिएट हो रही है, कितनी यूज हो रही है, कितना पॉल्यूशन क्रिएट किया जा रहा है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, सब कुछ मॉनिटर करेगा। नेक्स्ट आता है एंड आपका पहला, जो सबसे पहला था, भाषा संगम इनिशिएटिव, भाषा संघ मोबाइल ऐप, एक भारत श्रेष्ठ भारत मोबाइल क्विज गेम, ये तीनों चीज लॉन्च की गई राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन
एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा, और उनके मिनिस्टर रहेंगे श्री प्रधान सिंह ने इसको इनॉग्रेट किया या लॉन्च किया। राष्ट्रीय एकता दिवस क्या है? ये आपकी बर्थ एनिवर्सरी होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो कि हमारे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, और इसको 31 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस को। Hello friends, through our recent general aware section analysis, we have identified that the news related to mega events is finding more weightage in the competitive exams. In order to cover related news to mega events such as Olympics, national awards, cabinet appointments, all of which contain heavy information, we have chosen a different way to convey that information using interactive infographics. Here is an example of interactive infographics. Using this, you can choose to study various information just from the single PDF. If you want to talk about the medal tally of Tokyo Olympic Games, just by clicking on the image of medals, you will be able to see the information related to medals. Now, if you want to study about any of the players mentioned here, just by clicking on the image of that particular player, you will be getting the information related to that particular player. Now, you will be provided with two types of PDFs. One is your desktop version and second is your mobile version. As the name suggests, desktop version is for both PCs, laptops, and your mobile version is basically for the mobile phones and tablets. In order to use your desktop version in mobile phone, you can use the software of WAPS application in your Google Play, and you can access the desktop version of the file in the phones also. So friends, this format of presentation will help you to remember all the valuable information in an easy manner by connecting information to the related images. Our team has worked immensely hard to bring this to you, and so please do share your valuable suggestions and feedback through comments, as it will boost us to create further such initiatives. Thank you. So friends, this was our video. I hope you enjoyed our video. If you liked our video, do hit the like button, share the link with your friends, and if you haven't subscribed to our channel or if you are new to our channel, then do subscribe because it motivates us to bring a better content for you guys. Also, if you have any trouble regarding login or payment or any other issues, then you can reach to us on our mail, that is support@affairscloud.com, or you can call us on the number 9677333862 and we'll resolve your issue as soon as possible. Also, you should go and check our courses that are available at a very reasonable price, and that will help you to boost your preparation.